The chapter is Social Responsibility of Business and Business Ethics. Though this chapter may seem to be very uh, childish when we are reading it in 11th standard, but इसका जो impact है, मतलब इस chapter का जो impact है, that you will be also feeling in 12th standard. We have a chapter there which is called as Business Environment. चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वी विल बी टेकिंग अप, मतलब जब भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे ना, उसके अंदर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो एक टर्म है वो हमेशा आपको सुनाई देगा. नाउ व्हेन वी इंट्रोड्यूस दिस चैप्टर, व्हाट डज दिस चैप्टर मीन? एवरी बिजनेस इज रन इन अ सोसाइटी ओनली. हम सोसाइटी से अलग होकर कोई बिजनेस नहीं करते, चाहे हम सोल कर रहे हो, चाहे हम पार्टनरशिप कर रहे हो, वेदर वी आर इन टू द बैंकिंग बिजनेस, वेदर वी आर देयर एज अ वेरी बिग कंपनी, हम कहीं पर भी काम करते हो, वी आर taking up the resources of the society and we are giving back it to the society. That means every concern, every business organization has some ethics. There are two different meanings. Responsibility एक अलग चीज है और business ethics एक अलग चीज है. They have to maintain some ethics, यानी कि कुछ अपने अंदर से एक moral जो responsibility है, morally कुछ ऐसे procedures, कुछ ऐसे रूल्स they need to frame that the business is answerable to the society. तो उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके बिजनेस को बाद में सोसाइटी से दिक्कत हो. एंड मोर ओवर, एवरी बिजनेस हैज टू फॉलो सम social responsibility. And these responsibilities, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, right? So if I'm teaching you, I'm responsible to you also. I'm responsible to my own work also. I'm responsible to your teachers, sorry, to your parents as well. यानी कि even though I am teaching, but my responsibility is towards you, towards my work, towards my parents. Similarly, हम कहते हैं बिजनेस का क्या है? बिजनेस तो हम कमाने के लिए करते हैं, वो तो हम प्रॉफिट, मियर इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग मशीन. बट नो, देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट एवरी बिजनेस हैज टू वॉलंटरली, डेलिबरेटली उनको ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनको उनको उठाना पड़ता है. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. क्योंकि जब हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं तो डेफिनेटली दीज आर द वन. कई बार अगर आप एड देखते हो, यू आर लुकिंग इनटू द एड, you might have seen, abhi recently there was one campaign against Amitabh Bachchan ji. I think you must have also seen it on the TV and all. And it was a campaign that Amitabh Bachchan ji is he's the I think he's there in the ad of Kamla Pasand. अभी IPL के दौरान आता है उनका ad along with Ranveer Singh. Has anyone seen? Yes, Subhadeep has seen. Anybody else? There is a Kamla Pasand ad. Even though आपका जो I think Shahrukh Khan and this Ajay Devgan are also giving the ad. Zubaan Kesari, Vimal Wala, and Hrithik Roshan is also giving. But the case was on Amitabh Bachchan ji because बोला गया कि you are the brand ambassador of Pulse Polio. You are the brand ambassador for so many. कोरोना जब हुआ था तो आपने इतने सारे मतलब कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली थी.
नाउ वो लोग तो हमेशा ही पैसा कमाने में लगे हैं, शाहरुख है, सलमान है, ये सब लोग, मतलब जो पिटिशन है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल. In the petition they have said कि they have always worked only for money, but आप being a senior citizen, being a senior responsible versatile actor, you have always worked for social responsibilities also. आपने पल्स पोलियो का लिया था, आपने कोविड का लिया था. Then for mere money why are you there in this ad? अमिताभ बच्चन जी ने जवाब दिया था कि आप लोग मुझे बोल रहे हो कि तो व्हाई डोंट यू से द अदर पर्सन. तो उन्होंने कहा ही इज ऑलवेज देयर फॉर मनी. वो तो लोगों ने जो बोला वो बता रही, वो तो कपड़ों के लिए अपनी वाइफ के कपड़े भी पहन के आ जाता है. बट यू हैव ऑलवेज मेंटेन. तो बेटा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट्स अ ह्यूज टर्म. We can say that we are working for money, but money making should never be the only objective of any company. And that is why every concern has certain responsibilities towards its investors, its consumers, its employees. Plus हर बिजनेस को कुछ एथिक्स, कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करनी पड़ती है अपने आप ही. और वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर दे गोइंग टू टेक. आई कैन प्राउडली से, इवन दो मैं बहुत नुकसान में हूँ, मैं नुकसान में हूँ, बट येट आई कैन प्राउडली से दैट आई नेवर सपोर्ट एनीवन चीटिंग. My ethics has always been high that as a teacher I should teach all of you that you all are true, honest. मैं जितना आप लोगों को करवा सकती हूँ मैं करवाऊँ. I should be honest towards my profession because I'm a teacher, and as a teacher I should never tell a lie and I should never encourage a lie. Yet I've, मेरे जो कलीग टीचर्स हैं वो मुझ पर हंसते हैं. दे टेल मी मैम आप तो पागल हो, इट्स ओके अगर आप चीटिंग करवाते हो तो कुछ नहीं होता है, एवरीबडी इज मेकिंग चीटिंग, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है. बच्चे खुद चीटिंग करने चाहते हैं, पेरेंट्स खुद चीटिंग करवाना चाहते हैं. दिस वॉज अ वर्ड टोल्ड बाय माई टीचर टू मी, यू नो, एंड आई वॉज रियली रियली फीलिंग वेरी बैड. लेकिन ठीक है, तब भी उनके पास बच्चे हैं, दे आर, यू नो, ही इज बाउंड बाय स्टूडेंट्स. बट आई फील दैट येस आई एम एटलीस्ट, मैं अपने, मेरी डॉटर भी आज मुझे सुबह कह रही थी कि मामा यू आर टू मच मॉरल, यू आर एथिकली टू मच, आप बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल रहती हो. बट आई फील दैट येस दैट इज़ माई स्ट्रेंथ, दैट इज़ माई वीकनेस ऑल्सो. लेकिन दिस इज़ नोबल प्रोफेशन. बट जब हम बिजनेस कहते हैं, जब हम पैसा कहते हैं, जब हम प्रोडक्शन कहते हैं, जब हम गुड्स कहते हैं, वहाँ लोगों का कहना है तो हम तो पैसा कमा रहे. रॉन्ग एड हुआ तो क्या हुआ. They promise that the investors will be getting this much of dividend, this much of मतलब कि minimum dividend, but later on they don't get. They pollute, then they bribe the officers, वो bribe करते हैं officers को and they are free. 2019, I remember 2019 में there was a pollution problem in Delhi, and Delhi NCR के अंदर जो है pollution problem थी. एंड वहां पर उस वक्त में जो है द पीपल वर सेड दैट दे शुड, मतलब ऑल द बिजनेस वर टोल्ड दैट दे शुड नॉट यूज द बॉयलर्स, क्योंकि बॉयलर्स के लिए दे हैव टू यूज द डीजल जनरेटेड, आपका जो जनरेटर है उसे यूज करना पड़ता था. सो देयर वाज अ, मतलब उन पर जो है स्ट्रिक्ट मेशर था कि दे विल नॉट बी यूजिंग द बॉयलर्स विच आर यूजिंग द डीजल. And this was on paper by UP government and Delhi government. But and the stubbles, जो आपके गेहूं के जो बचे हुए होते हैं उनको जलाना नहीं चाहिए. In my sister's husband's office, मतलब which is one of the leading export office, उनके ऑफिस में जो आपके सैनिटाइजर ऑफिसर्स आते थे
उनको ब्राइब किया एंड दे यूज। दिस इज वेयर वी आर एथिकली, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। बट द बिजनेस इज रनिंग इनसाइड द सोसाइटी। हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, वी मस्ट टेक द अप्रोप्रिएट मेजर्स। वी मस्ट नॉट ब्राइब द ऑफिसर्स जस्ट बिकॉज हमें अपने बिजनेस में थोड़े से पैसे कमाने हैं। एंड thus there are so many, if you read the newspaper you would come to know that a business enterprise is permitted by society to carry on the industrial or commercial activities and earn profit, but it is obligatory on part of the enterprise not to do anything which is undesirable, like manufacturing and sale of adulterated goods. जब पैंडमिक था उस वक्त, आई डोंट रिमेंबर, इट वाज समवेयर इन हापुड़, कौन सी कंपनी थी उसके, मतलब वो कंपनी नहीं, उन्होंने उस कंपनी के नाम से नकली माल बना रखे थे। इफ यू गो टू द मार्केट, मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट में जाओगे, जो काली मिर्च होती है उसके अंदर दे ऐड पपैयाज ब्रीच, जो पपैया होता है जो उसके बीज, क्योंकि पपैया का जो बीज होता है और काली मिर्च होती है सूखने के बाद दोनों एक जैसी लगती है, तो दे डू इट। एंड आई थिंक धनिया है या किसे उसमें भूसा मिला देते हैं। Thus the business only tries to get profit from their profit margin, but they don't understand, on the other hand sometimes they may not be giving the working atmosphere for their people। मशीनें पुरानी हैं, किसी का हाथ उसके अंदर आ गया, हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, खाने के लिए मेस नहीं है, हाइजीन नहीं है। समटाइम्स दे bribe the tax officers। I personally know, हमारे यहाँ पर एक इंचार्ज थी मिसेस कुमार, अगर वो आज भी मेरे सामने आ जाएंगी ना तो मैं ऐसे डरूंगी जैसे मैंने भूत को देखा हो। मैं भूत को देखकर नहीं डरूंगी, बट मैं उनको देखकर डर जाऊंगी। शी वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एंड एरोगेंट। वो हमारी मलिक मैम को पता है क्या बोलती थी? If you try to remove me out of the service, Mrs. Malik, I'll complain. My husband is an IAS officer, income tax officer. इनकम टैक्स बचाने के लिए सारे के सारे, चाहे वो स्कूल्स हों चाहे वो कंपनीज हों, वो लोग जो है ब्राइब करते हैं ऐसे ऑफिसर्स को। दिस इज रॉन्ग। नॉट इंस्टॉलिंग द पोल्यूशन डिवाइसेस, हल्दीराम्स, कितनी बार उन पर केस हुआ है, गोपाल जी डेयरी। देन सिंसियरली अटेंडिंग टू कस्टमर कंप्लेन, ये वाला जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, इसका सारा का सारा आपको जो है लास्ट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मिलेगा, द एंटायर थिंग। एंड ड्यू टू दीज फैक्टर्स ओनली द कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल हैज ट्राइड टू हेल्प द कंज्यूमर्स। क्योंकि पहले क्या होता था, आपने कोई सामान खरीदा, then if you want to complain to the officers, if you want to complain to the company, there was no one, thinga। But now it is mandatory that every company has to have their own consumer grievance cell। 1800 वाला जो नंबर होता है, जो आपके, चाहे आपका मोबाइल हो चाहे वो आपका टीवी हो, उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको उस नंबर पे कॉल करके रजिस्टर करना है। नाउ इट इज कंपल्सरी। सर्टेन थिंग्स कैन बी, गवर्नमेंट जो है उस पर फोर्स कर सकती है, बट कुछ हमारी कंपनी की अपना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट इज दे नीड टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, एथिकली अपराइट बिहेवियर, कि उनका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म पे, इफ दे वांट सक्सेस, सक्सेस इज नॉट ओनली द गुड्स, सक्सेस डिपेंड्स ऑन सो मेनी features that a business needs। एंड अगर आप अपने आसपास में देखोगे तो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ कंपनीज
who are breaking these responsibilities. अगर आप कभी भी कंज्यूमर मतलब सॉरी कंपनी के जो हम लोग बोलते हैं कि आप लोग 10th 12th के बाद यू कैन गो फॉर कंपनी सेक्रेटरीशिप, कंपनी सेक्रेटरी होता है आपका CA CS CWA होता CMA। तो जो CS होता है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल डील विद सच केसेस, क्योंकि कंपनी जो है वो वॉयलेट कर देती है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। तो दिस कंपनी सेक्रेटरी जो होता है ही इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड आउट द कंपनी की कितने लॉस को वो फॉलो कर रही है, एंड दे नीड टू फॉलो सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम बोलते हैं वी नीड टू गेट द FSSAI सर्टिफिकेट, वी नीड टू गेट दिस सर्टिफिकेट, एंड दीज आर ऑल पार्ट ऑफ social responsibility. Why do we need an FSSAI certificate? To prove that हमारा जो food item है it is completely safe for people, and that is a social responsibility that we need to give to the, so they are the one. Social responsibility of business refers to its obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of the objectives and values of our society. Abhi recently there was a, I think किसका ad था, उसके ऊपर केस डला है आलिया भट्ट का। आई डोंट नो मान्यवर का है शायद, किसी और का ऐसा कुछ है। देयर इज अ केस गोइंग ऑन। डज एनी वन ऑफ यू नो? No, ma'am. वो वेरी स्ट्रेंज। आलिया भट्ट तो सबकी फेमस है, फेवरेट है भाई। नोबडी? सो कल्याण, सुवोदीप, मौलिका, नोबडी? No, ma'am. Very strange. Yes, Subodip? No. Okay, I'll tell you. There is one ad. If you see the social network, there you will find, मैंने भी social उसमें ही देखा था, एक ad है. I haven't seen the entire ad, I'm telling you. According to that ad, means she is as a bride, she is sitting, and वो अपने पेरेंट्स को कहती है कि मैं कोई सामान हूँ जो मुझे आप दान में दे रहे हो, कन्यादान। उसके ऊपर जो है मेनी पीपल हैव, मैं तो इनफैक्ट आई हैड सपोर्टेड दैट एड, बट मेनी पीपल हैव स्पोकन अगेंस्ट दैट एड कि वो हमारे जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, उसका जो एक मतलब कि जो वर्ड है कन्यादान, जो कि हम बहुत अच्छा मानते हैं, उसको उसने वॉयलेट किया। सो दैट एड इज अंडर स्क्रूटनी। सेम एक ऐसा ही एड था अभी, आई डोंट नो इट वाज देयर 2 months और 3 months बैक, उस एड को निकाल दिया गया था। इट वाज बाय कल्याण ज्वेलर्स और समथिंग लाइक दैट। उस एड को बाद में निकाल दिया गया था, दैट वाज पुल्ड ऑफ। तो इवन वी आर गिविंग एन एड ऑल्सो, we need to see that it should not hurt the sentiments of any particular community or religion or language, वो हमें देखना होता है। So that is what it is written, which are desirable in terms of. The assumption of social responsibilities by business and enterprises imply that they respect the aspirations of the society and would try their best to contribute to the achievement of these aspirations along with their profit interest. प्रॉफिट मार्जिन तो बेटा हमेशा रहेगा, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो कुछ नहीं हो सकता। बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी लाइक कि आप आटे में नमक मिलाते हो, दैट इज ऑलवेज गुड, लेकिन नमक में आप आटा नहीं मिला सकते। The idea is in contrast to the common notion that business exists only for maximizing profits for its owner. बाकी लोगों का क्या मानना है कि भाई बिजनेस कैसे रहेगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लीगल में क्या होता है, यू हैव सम लॉ, आपको उसे फॉलो करना ही करना है। बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो हमारी अपनी इंटेंशन है, दैट इज अ वॉलंटरी। वेदर द लॉ इज देयर और नॉट, वी शुड फॉलो सर्टन रूल्स। आपका लॉ है या नहीं, यू शुड फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर योर सेल्फ। मुझे एक मतलब कल एक बहुत ही जोक याद आया,
मतलब इट इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ अ रियलिटी। बिहार में मार्च में कुछ टीचर्स थी, 5 टीचर्स, दे वर डांसिंग क्लास के अंदर। स्कूल बंद था तो टीचर्स थी, मज़े कर रही थी। अब ऐसे तो मैं आपको रोज़ अपने स्कूल के एलपीएस की मैं रोज़ आपको तस्वीरें दिखा सकती हूँ, बिकॉज आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद देम एंड आई इवन मेक द क्वेश्चन पेपर्स फॉर देम। मैं तो उनको बिजनेस स्टडीज़ और एसएससी के पेपर्स बना के देती हूँ। तो देवर डांसिंग। आपको पता कल गवर्नमेंट ने उनको सस्पेंड कर दिया, कल। द रीज़न वॉज वो लोग किसी, आई थिंक शीला की जवानी ऐसे कुछ पे डांस कर रहे थे और उन्होंने कहा टीचर शुड नॉट डांस ऑन दिस। आई फेल्ट वेरी इडियोटिक कि भाई उसे कौन देख रहा था, अब उसको जिसने वीडियो बनाया होगा उसको पकड़ो पहले जाकर। बट दैट वॉज, वो वीडियो जो है वो वायरल हो गई, दैट वेंट टू द डीएम एंड दोज 5 टीचर्स एंड अलॉन्ग विद द हेड मिस्टर्स वर सस्पेंडेड। दैट इज व्हाट वी कॉल एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई हमें देखे या ना देखे, वी नीड टू फॉलो सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपके पास लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है। जब आप स्मोकिंग, अगर आपका टोबैको का काम है तो आपको नीचे स्टेचुएटरी वार्निंग देना है दैट टोबैको और कंजम्पशन ऑफ स्मोक, मतलब कि टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए कोई लॉ नहीं है, इट इज वी फॉलो। राइट नाउ, टू whom are we responsible? We are responsible to the shareholders जिन्होंने हमारे पास पैसे लगा रखे, the investors. We are responsible to all the employees who are working with us. We are responsible to all the consumers जो हमारा सामान खरीदते हैं. We are responsible towards the government because it is providing us with subsidies. हमें उनको, we have to return back. We are responsible to the community by not hurting their sentiments. So we are responsible to all these interest group. और इसको हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग में. The very first is responsibility towards the shareholders or investors, मतलब जिसने भी पैसा लगाया है. What do they expect? Yes, everyone expects. मैं तो बिल्कुल चाहूँगी कि भाई मेरी जो कंपनी है उसमें सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो. बट जिन्होंने मेरे साथ पैसा लगाया है, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, आई शुड नॉट ईट अप देयर इन्वेस्टमेंट. आई शुड गिव देम जो भी उनका है. इफ़ दे हैव इन्वेस्टेड तो इंटरेस्ट हो गया, या इफ़ दे हैव शेयर्स हैं तो उस पर डिविडेंड हो गया. गिविंग देम, प्रोवाइडिंग देम विथ ऑल द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, अबाउट द बिजनेस, एंड ऑल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग जिससे कि उनकी शेयर्स की भी वैल्यू बढ़े. सिर्फ मेरा नहीं, नॉट ओनली द promoters, but the share value, the value of everyone who has trusted in me. Secondly, towards the employees, the workers, जो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको, वो अगर हमारे ही भरोसे they work, we need to give them the salary. अगर आपको याद हो, during the pandemic there was one rule made by government, and according to that rule the government forced the companies to pay the salary of those people who are not working. क्योंकि जो लोग हाई लेवल पर थे उनको तो वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट मिल गया था, बट दोज हु वर वर्कर्स थे, जो बेचारे जो माइग्रेंट्स थे, वर्कर्स थे, उनको सैलरीज नहीं मिल रही थी. अभी भी आपको पता, मेरी जो स्कूल की टीचर्स हैं, दे सेड कि उनकी 3-3 महीने की सैलरीज अभी रहती हैं, 3 मंथ्स की सैलरी. ग्रीनफील्ड्स में दिया है, दिस इज बिकॉज दे आर फॉलोइंग द गवर्नमेंट रूल्स. ग्रीन वे में दिया है, देन अर्वाचीन इंटरनेशनल में दिया है, बट नॉट इन LPS, नॉट इन फ्लोराडेल. दैट इज रॉन्ग. To provide right kind of working atmosphere.
वर्किंग एटमॉस्फेयर का मतलब सिर्फ फिजिकल एटमॉस्फेयर नहीं है बेटा, द कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल। जो लोग काम करते हैं उनके बात करने की तरीका, देयर शुड बी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें आप एक दूसरे के साथ में जो आप कोऑपरेट करके काम करते हैं। To provide benefits like medical facilities, education, retirement benefits, and that depends from company to company. Sole proprietorship में आप इतनी सारी चीज़ें नहीं दे सकते हो, बट हाँ आप वेजेस दे सकते हो। पार्टनरशिप में भी आप वेजेस सैलरी दे सकते हो, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह आपके जो हैं कंपनीज में आ जाते हैं। टू डेवलप देयर स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। आज की डेट में टेक्नोलॉजी एवरी सेकेंड इट इज चेंजिंग। लास्ट ईयर जो 11 हमने मतलब कि एप्पल 11 आया था, नाउ इट इज सेड दैट एप्पल 11 इज आउटडेटेड, नाउ 13 इज गोइंग टू कम। दैट्स एन एग्जांपल। एंड हाउ डज अ पर्सन जिसने पहले पढ़ाई की है, आप लोग जब पढ़ाई करोगे तो मे बी आज से 4 साल बाद यू विल बी ग्रेजुएट्स, देन उस वक्त में समथिंग न्यू होगा, लेकिन उसके 4 साल बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आप उसको कैसे कवर अप कर सकते हो? इफ योर कंपनी इज गिविंग यू द ट्रेनिंग, if your company is providing you the developmental programs, then for the workers it should allow them to form the unions. क्यों? Why should they form the unions? अब the workers एक community है, they all are the hands of the machines that we are using in our companies. So when they need something, it is not for one person. मेरी नीड है नहीं होता, वर्कर्स की हमेशा सबकी होती। सो कोई एक इंसान आपके पास नहीं आ सकता, तो दे आर अलाउड टू फॉर्म द ट्रेड यूनियंस। हमारे यहाँ पर इन इंडिया इट इज अलाउड, इन देयर आर कंट्रीज वेयर वर्कर्स आर नॉट अलाउड टू मेक द यूनियंस प्रोटेस्ट, बट इन आवर कंट्री इट इज अलाउड। ट्रेड यूनियंस आपके अभी जो भी हमारा जो किसान का चल रहा है, दैट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ यूनियन, so that they can raise their concerns. The company cannot say that we are the owners, so हम जो चाहेंगे तुम्हें आप कर सकते हो. There is always a democratic participation. We need to understand कि employees हमसे क्या चाहते हैं. What do the workers want? कभी अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ जाती, हो सकता हम अब everything cannot be routed to the top level management. There are 3 levels of management. एक आपका होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो फॉर्मुलेट करता है, जो आपके ओनर्स हैं, जो आपके प्रोमोटर्स हैं, जो आपके सीईओज हैं। देन आपके होते हैं एचओडीज, जो आपके डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स। देन आपके थर्ड होते हैं ऑपरेशनल मैनेजर्स, जो कि वर्कर्स के ऊपर होते हैं, जिनको हम फोरमैन सुपरवाइजर्स कहते हैं। देन आपके एक्चुअल वर्किंग जो वर्कर्स होते हैं वो होते हैं। अब वर्कर्स की बात ऊपर तक कैसे पहुंचेगी? So they should be given the chance. Responsibility towards the consumers, supplying the right quality and quantity. There was a very big, very large protest in 80s, I think, क्योंकि उन दिनों में क्या होता था, डब्बा अलग तोला, डब्बे के अंदर जो है आपके जो मिठाई है उसे तोल दिया जाता था। Now there was a man, I don't remember, but he had taken up this in the consumer court कि जब आप डब्बे के साथ अगर आप मिठाई को तोलोगे तो मिठाई तो कम हो जाएगी, बिकॉज डब्बा आपका कम से कम 200-300 ग्राम तो चला जाता, तो उतनी तो मिठाई आपकी कम हो जाती है। तो द कोर्ट केस लगा एंड अल्टीमेटली कंज्यूमर कोर्ट, जो कंज्यूमर्स जो मतलब कि कंज्यूमर कोर्ट जो है, मतलब कि इट वाज डायरेक्टेड 1986, अब तो हमारा 2019 है, बट उस वक्त में कंज्यूमर एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग इट वाज डायरेक्टेड
दैट जब आप मिठाई तोलते हो तो मिठाई के साथ आप डब्बे को नहीं तोलोगी. इन एवरी स्वीट शॉप देयर शुड बी मतलब ये लिखा होना चाहिए, नोटिस लिखा होना चाहिए दैट हमारे यहाँ पर डब्बे के साथ जो है मिठाई नहीं तोलते हैं, और जब मिठाई को तोलते हैं तो पहले मिठाई को तोलना चाहिए और आपका जो है. दिस इज हाउ राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज टू बी गिवन to ensure regular and adequate supply of the products. मतलब कई बार क्या होता है, हमें पता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, तो हमें उसको जो है ब्लैक मार्केट छुपा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स द डिमांड सप्लाई थ्योरी चलती है. किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो सप्लाई कम होता है तो उसका प्राइस एक्सेलरेट होता है, वो नहीं करना चाहिए. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसिंग लाइक होर्डिंग छुपाना, ब्लैक मार्केटिंग, गलत वे करना, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स. पीछे आपका जो है फेयर एंड लवली जो है उसका एडवर्टाइजमेंट हटाया गया था. देयर वॉज वन एड बहुत 2-3 years बैक था, यामी गौतम का था वो. एंड अकॉर्डिंग टू दैट एड a girl gets married because she has used fair and lovely और वो गोरी हो गई है. So why are we discriminating a person on the basis of their color? और एक्चुअली सबको पता है फेयर एंड लवली लगा के कोई गोरा नहीं होता. So such misleading advertisements should not be there. To inform them about the product, the uses, and to handle the customers' grievances promptly. यही मैंने अभी आपको बताया था. पहले आपकी जो कंपनीज थी उनके पास आपका जो है सर्विस सेंटर्स नहीं होते थे, बट नाउ अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 and Consumer Act 2019, it is compulsory that the companies they ensure that there is consumer grievances. Next, the company is also using the resources of government. The government pays them subsidies. कितने सामान होते हैं जब हम import करते हैं तो government जो है उसमें हमें they give us the subsidies. So हमारा क्या है? We must respect the laws of the country. और ये सब आपके MCQs में ना they will be coming under this subheadings. To respect the law of the country is dash responsibility. So it is the legal responsibility to pay the taxes, to accept the values, to be a good citizen. Government और community जो है that includes good environment. अपने जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें साफ रखो, चिमनीज लगाओ, वाटर को आप ट्रीट करो, एंड इन दिस मैनर डेवलप अ प्रॉपर इमेज. आजकल आपने देखा होगा देयर आर मेनी कंपनीज विच आर गिविंग द एड्स. इसका जो है 10% वी आर गिविंग टू दिस, दे आर ऑल्सो मतलब उसके साथ में कुछ एड्स आते हैं. आई थिंक IPL के दौरान भी आता है, वॉश योर हैंड, सैनिटाइज करो आप, ऐसे करके आपके एड्स मतलब उसमें लिखा हुआ होता है. इफ़ यू आर वॉचिंग IPL उसमें भी लिखा हुआ होता है. दिस इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. This is a social responsibility that every company has to, every business organization has to see. They should ensure कि उनकी जब वो लोग यूज कर रहे हैं तो उसे देने के लिए भी they are using the appropriate means. Now, as I said, आप भी अगर कभी सोचोगे तो आपके भी दिमाग में आएगा that why do we give social responsibility? Why? This is because ये आपका कटा हुआ है इसलिए मैं सिर्फ आपको करवाऊंगी. आई विल नॉट बी टीचिंग दिस पर्टिकुलर स्लाइड. दिस इज ओमिटेड जस्टिफिकेशन वाला. इसके बाद आपका जो है एनवायरमेंटल वाला आएगा. CSR आई डू इट विद यू. एंड ये वाला जो रोल ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट है दिस इज देयर इन योर सिलेबस. अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू हैव
concept of social responsibility, why do we need, what are the different interest groups, वो हम कर चुके हैं, and role of business in environmental protection. Now, some people say, why do we need social responsibilities? हम तो business कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग में आई हैड गिवन यू वन फ्रेज कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या और कमाएगा क्या. यस, मोस्ट ऑफ द बिजनेस दे डू. अपने घर के आसपास में देख लो, ढाबे होते हैं, खाना धोया, पानी को उठा के वहीं फेंक दिया, बर्तन साफ किया, वहीं पे साफ कर दिया. वो कहते हैं हम क्या करें, हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम तो सिर्फ बिजनेस करना है, पैसा कमाना है और लिटर करना है, हमारा काम नहीं है. बट दैट इज वेयर वी आर रॉन्ग. एवरी बिजनेस, अगर वो उनका मानना है दैट बिजनेस कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, बट बिजनेस हमारे से ही तो हो रहा है. वी आर द पीपल हु आर डूइंग द बिजनेस. एंड अगर हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं लेंगे, हाउ मच गवर्नमेंट कैन डू. गवर्नमेंट स्वीपर्स डाल सकता है, लेकिन आप स्वीपर से पहले ट्यूसडे मार्केट होने के बाद आप जाकर ज़रा कभी उस जगह को देखो. इज इट नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? The business is also responsible because it's taking all the resources, चाहे वो पैसा हो, बैंक्स, गवर्नमेंट सेट करती है. Raw materials you are getting from the nature, human resource you are getting from the society. So it is very important that the communities, the government, the consumers, the shareholders, सबके इंटरेस्ट को जो है बिजनेस लेकर चलते. Now as I said, role of business in environmental protection. This is one of the longest battle which has been there and still it is going on. There was 4 years or 5 years back, there was a very big program of Shri Shri in this Lakshmi Nagar के पास में हुआ था. At that time the government had permitted, but पीछे क्या हुआ, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था NGT, उन्होंने जो है केस डाल दिया उनके ऊपर that if they have used the premises, if they have used the area, then they also have to, उन्होंने वहाँ पे जो है मतलब जितना खाया पिया था सब कुछ फेंक के आ गए. डेफिनेटली आपने खाया पिया, उसके बाद वहाँ फेंक के आ गए, देन आपके जो है उसका नाम क्या है, फ्लाइज आए, एंड व्हेन द फ्लाइज केम तो नेचुरली की पोल्यूशन हुआ, एंड देन दे वर यूजिंग द जनरेटर्स, उसकी वजह से पोल्यूशन हुआ, नॉइज पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, पानी में उन्होंने फेंका, दिस नियर द यमुना रिवर. Do we call it as the real sense? No. Years back, not now but 15-20 years back, Haldiram was accused, आपका जो ये फरीदाबाद वाला था उनका था, कि वो लोग क्या करते हैं, what do they do is they just अपने जो उनके रिफ्यूज़ होते हैं, उनकी जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उनको दे जस्ट मतलब पानी में धोने के बाद मशीन्स होती हैं, उनको सोडा, कॉस्टिक सोडा से धोया जाता है, एंड आफ्टर दे आर मतलब उसको ट्रीट करने से पहले दैट इज ड्रेन्ड इनटू द रिवर, जो वहाँ पे पानी है उसके साथ में, एंड दैट गोज टू द रिवर विच कॉजेस pollution. And later on there was a case on them and they were asked to pay some fine or something like that. So this is how the pollution is there. Abhi recently 2-3 years back also, that I think I have even shared with you also, there was one incident with me only. We were मैं अपने इंस्टीट्यूट ही जा रही थी एंड रिया दीदी का जो है she was having her pre boards, so we were crossing this Hindon river and there was huge, that was a snowy thing, and सब लोग वहाँ खड़े होके सेल्फीज ले रहे थे, and it was a cold winter, it was 29th of December or something, and even we were also बहुत सुंदर लग रहा था. तो मैं नीचे उतरी तो पुलिस वाले ने कहा कि मैम आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, तो आप क्यों नीचे उतर गए. मैंने कहा ये क्या हो रहा है.
तो ही सेड मैम ये कुछ नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे जो गोपाल जी डेयरी है इन्होंने अपना सारा कॉस्टिक सोडा से जो धोकर जो है इसमें डाल दिया है और ये रातों रात झाग बन गया है और लोगों को लग रहा है कि ठंड के मारे यहाँ पर जो है स्नोफॉल हुआ है तो वो लोग यहाँ पर पिक्चर्स खींच रहे हैं. Later on it was there in the news that the company was sued, मतलब जो गोपाल जी डेयरी था उस पर कुछ 50 लाख का जो है फाइन डाला गया था. So that is, the environment is important for all of us and we all are collectively responsible, whether it is government, the enterprises, the consumers, workers, सबको अपनी तरफ से, मुझे अपनी तरफ से करना चाहिए, आपको अपनी तरफ से करना चाहिए. गवर्नमेंट बैन कर सकता है लेकिन उसे यूज तो हम करते. आई डोंट नो व्हेन इट वाज देयर, आई थिंक उसमें था कि देयर वाज सम बैन एंड सब कुछ जो है वो अब इसमें ही दिलशाद गार्डन में ही था आई थिंक 2 years बैक की देयर वाज अ बैन ऑन फायर क्रैकर्स. लोग घरों के अंदर बेच रहे थे, लोग घरों के अंदर बेच रहे थे. एंड सम ऑफ देम वन यू नो टेलिंग मी लाइक दे हैव डन समथिंग, उन्होंने जो है फतेह गाड़ दी, हम तो ले आए, वो घर पे बेच रहे थे हम तो ले आए. गवर्नमेंट लॉ ही तो बना सकता है लेकिन जब वो पोल्यूशन होता है उसके बाद जो अस्थमेटिक पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका क्या? आर वी नॉट रिस्पॉन्सिबल? मेरे एक के बजाने से होता, वो नहीं बजा रहा है, मैं बंद करूंगी तो मैं दूसरों को बोल सकती हूँ. मेरे खुद के घर में मैं बता रही हूँ, हम 4 ऐसे हैं जिनको पटाखों की आवाज़ से भी नफरत है. मेरी सिस्टर के घर में जो है वो पटाखे फोड़ते हैं एंड व्हेन आई टेल देम, उनका कहना होता है मेरे एक से होता. मेरी सिस्टर का कहना होता है वो तो लड़का है रमा, तुझे पता है ना. और हमारे घर के अंदर मी, माई मदर, माई डॉटर, वी 3 आर एस्थमेटिक पेशेंट्स. व्हाट टू डू? बट वी ऑल, गवर्नमेंट सिर्फ इनैक्ट करती है, द कंज्यूमर्स, द वर्कर्स, द मेंबर्स, हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. द बिजनेस enterprises should however take the lead in providing their solutions to environmental problems. They should see कि they are not the one who are the main cause of pollution. They are the one who are creating wealth, they are the one who are creating employment, they are the one who are creating trade, they are the one who are using the technology. So कई बार हमारे आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज होते हैं. अभी जो आपका दिल्ली में पोल्यूशन आता है सितंबर, अभी जो ये वाला जो मंथ अभी आएगा पूरा स्मॉग हो जाता है. एंड इफ़ यू रिमेंबर सुवोदीप एंड मौलिका, देयर वाज अंशिका, जब हमारी 2-3 महीने छुट्टियां थी स्कूल्स में, पहले स्मॉग की वजह से था, फिर दिल्ली में रायट हुआ था, फिर पैंडमिक आया था. रिमेंबर? यस मैम। एंड दैट इज, मास्क मास्क वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ये स्कूल्स के अंदर मास्क थे. व्हाट इज दैट? What was that? This is said कि जो आपका मतलब कुछ लोगों ने कहा दिवाली की वजह से था, तो some people said that at that time आपका ये वाला जो टाइम होता है वो कटाई की होती है. एंड व्हाट हैपेंस इज जो स्टबल्स होते हैं, जो मतलब कि जो उसके स्टॉक्स होते हैं वीट के, उसको ये लोग जलाते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए. एंड वी आर नॉट हैविंग सच डिजाइंड इक्विपमेंट्स जो पोल्यूशन को कम कर सके. We are using poor quality materials even in the production of sugar cane. शुगर केन में भी हमारे पास आते हैं जो बैगेज होते हैं, मतलब शुगर केन को क्रश करके उसका जूस निकाल दिया जाता है और वो जो जूस निकालने के बाद जो उसके स्टॉक्स होते हैं उसको बर्न किया जाता है फॉर बायोफ्यूल. बट इन इंडिया वी डोंट हैव द मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कि पोल्यूशन को कम करके बायोफ्यूल को एक्सट्रैक्ट करे. मोर ओवर हमारे यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा पढ़े लिखे या अमीर भी नहीं होते, सो दे थिंक दैट इट्स ओके, सो दे नीड टू रीडिज़ाइन इट. द गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड विथ मेक इन इंडिया, इट हैज स्टार्टेड विथ मेनी कैंपेन्स, बट लेट अस सी. एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, मतलब कंपनी को क्या करना चाहिए, ये है आपके जो पॉइंट्स. द वेरी फास्टेस्ट,
जो आपके मैनेजमेंट के टॉप मैनेजर्स हैं, CEOs, ओनर्स, दे शुड try to create, maintain and develop work culture for environmental protection and pollution prevention. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, that openly the companies were paying the bribe instead of, मुझे लगता है कि एक ऑफिसर को ब्राइब करने के बजाय अगर हम थोड़ा सा पैसा लेकर अगर हम जनरेटर को यूज़ ना करके इफ़ वी आर यूजिंग द बॉयलर्स इन अनदर वे इलेक्ट्रिक वगैरह में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. बट नहीं, हमें तो जनरेटर ही यूज़ करना है. Ensuring that commitment to environmental protection is shared throughout the enterprises by all divisions and employees. Developing clear cut policies. मतलब क्या आपका raw material होना चाहिए. You should not use something which is inferior. Employing superior technologies, using scientific techniques of disposal and treatment of waste, जो मैंने भी आपको एक example दिया. There are many companies जो IT companies होती हैं, उनके जो e-waste होते हैं, electronic waste, they are just thrown away. In Model Town के पास एक area है, 3-4 years back it was there in the news that कोई एक बस्ती थी जहाँ पर maximum people were detected with skin cancer. Later on it was found that वहाँ आसपास में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है उसको फेंक दिया जाता है. That should not be there. We must see. Complying with the laws and regulations enacted by government for prevention of pollution. Participation in the government program related to management of hazardous substance, clearing the polluted rivers. आपके गंगा एक्शन प्लान की तरह बड़े सारे प्लान्स होते हैं. There are companies which undertake plantation of the trees, checking the deforestation. इसके पीछे जो है आपका रूल ये है कि अगर आपकी कंपनी, अगर आपका बिजनेस एंटरप्राइज एक पेड़ काटता है तो आपको 3 पेड़ उसकी जगह लगाना चाहिए. That there is a rule. जैसे आपके पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, they cut the trees, so they are supposed to periodical assessment of pollution control programs in terms of cost and benefit so as to increase the progress with respect to environmental protection. बहुत सारी companies हैं आजकल तो they are putting the smoke stacks also, they are having the noise के लिए भी they are putting the silencers, but there are companies which do not follow these rules. Arranging educational workshops and training material to share the technical information and experience with supplier, dealers and customers. So, in other words, what we say is that a business has to sustain within the society, and therefore it is also the responsibility of the business that it follows certain norms. कुछ आपके लॉ बनाया जाता है, but there are laws which are not framed, but that is an ethical responsibility of that business कि वो लोग अपने आप ही उसको follow करें. They should have the conscience with them. उनके दिमाग में, उनके उसमें अच्छाई और बुराई के बीच में उनको डिफरेंस पता होना चाहिए कि this should not be done by our company. Yes, बहुत सालों तक बहुत सारी कंपनीज इवेट करती हैं, लेकिन जब पकड़ी जाती हैं तो दे आर ऑल्सो फाइंड. कभी कभी कंपनीज बंद हो जाती हैं. स्पेसिफिकली जो छोटी कंपनीज होती हैं, दे हैव टू फेस द एक्ट्स. उनको तो एक्ट्स को फेस करना पड़ता है. बड़ी बड़ी कंपनीज शायद ब्राइब दे के बच जाए, बट द स्मॉलर कंपनीज डू नॉट. सो बिजनेस social responsibilities and means towards a society, towards each interest holder, उस कंपनी से जिसको फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो कम्युनिटी है, हर एक के इंटरेस्ट को at the same time towards the environment where the business is existing, उसको देखना, it is the responsibility of any business organization.
in Delhi, in this Vishwas Nagar, earlier in the 1990s, each house, चाहे वो छोटा घर हो चाहे वो बड़ा घर हो, each house had a copper factory. You can say that it was a hub for copper factory. कहीं पे स्क्रैप्स होती थी तो कहीं पर आपके कॉपर के वायर्स बनते थे तो कहीं पर कुछ और बनता था. एंड दैट पर्टिकुलर एरिया इज एक्चुअली थोड़ा सा, अगर हम कहें तो सिस्टम से थोड़ा अलग है. द सीवर सिस्टम इज नॉट देयर वहाँ पर भी सीवर के लाइंस नहीं थे उस वक्त में. तो it created many problems and then it was the NGT, that is the National Green Tribunal, जिन्होंने इसको उठाया, and most of the business units were shifted to आपका नरेला जो है पानीपत से पहले वहाँ पर शिफ्ट हुए थे. they were allocated areas over there and they were shifted there. But every time it cannot be the government who comes and tells us, it has to be the business also, and that is why responsibility towards the business is also important. अगर इनको आप नहीं करोगे ना तो हो सकता है कि the business may not run, जिसको हम कह रहे थे फर्स्ट में, हम कह रहे थे सर्वाइवल, प्रॉफिट में हम कह रहे थे सर्वाइवल, ग्रोथ, तो सर्वाइवल होना मुश्किल होता. So that is all in the chapter, that is social responsibility and business environment.